Shri Hari Nama Sankirtan Ki. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkripa tamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. हरे कृष्णा. तो आप सबको अगर याद होगा हमने फोल्ड कर इसको बांध लीजिए ना. आपको अगर याद होगा हमने पिछला क्लास डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में. कौन बता पाएगा? कोई कुछ बताने का कोशिश करेगा? यस, एनीवन वुड लाइक टू स्पीक? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. पिछले क्लास धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी, we are discussing one of the slok 15.6 where you explain भगवान को धाम होता है गोलोक धाम और वैकुंठ धाम, the spiritual world that is. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes, Prabhuji. Both of you are audible, Prabhu. Hare Krishna. There is some issue. Speaker. Oh, you are not able to hear, Prabhu? On yours? Yeah, I don't know why. Hare Krishna. Just 1 minute. Let me put my earplugs. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Prabhuji, can you hear me? Yeah. Right now I'm able to hear. Actually, there is some issue. Yeah. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So last time, you are explaining the one of the slok is 15.6, where you explained that the spiritual world, which is entered by Bhagavan Sri Krishna, that is not illuminated by moon or sun or anything else or electricity, but it is illuminated by himself only. And once any Jivatma goes to that particular world, he or she never comes back to this material world. But if Jivatma wants to create some center or something, and if he or she desires to come to the material world, he or she can come, and Bhagavan will not put any constraint. They are free to come. They are free to go to anywhere. Because love means freedom. Yeah, freedom. So they have given full freedom, so they can go to anywhere. They can do. They can stay there. They can come back to the material world. They can do whatever they want in the material world. But if in the material world, we are the human beings. We have there are. I think you also mentioned there are 85 or 84 lakh species, and human beings are the rare species among all these 84 or 85 lakhs. We have attained that human body or Jivatma because we have done some good thing there. Now, once we come to this material world, if we our punya or pap, we can do more pap also, we can do more punya also. It can go down, it can go up. We can go again back, we can go back again to the spiritual world. But the other, like animals or
demigods. For animals, they are पाप नहीं कर सकते, but they can gradually they transform to, they can gain human some beings. points. Yeah. But one demigod जो होते हैं उसका they don't do any पाप, but their जो credit point है वो decrease कर जाता है. Correct. Something to explain, yeah. Yes. So आज हम उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे और हम आध्यात्मिक जगत के बारे में और चर्चा करेंगे. तो आज का टॉपिक है सेम है, मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आवर रियल होम. तो हमने पिछला सेशन में देखा था, पिछला से पिछला सेशन में कि अर्जुन पूछते हैं कि मृत्यु के समय क्या होता है. तो भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जैसे हमारा भावना होता है, जिस तरह का एक व्यक्ति सोचता है उसी तरह का उसको गति मिलता है जिसके बारे में सोचता है. और हमने देखा कि हमारा शरीर कैसे ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है. और मन बुद्धि अहंकार हमारा सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर में हम जैसे जैसे चीजों को स्टोर करेंगे इस जीवन में, उस अनुसार हमको नेक्स्ट जीवन का हार्डवेयर बनेगा. इस जीवन का सॉफ्टवेयर में हम जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे उसके बेसिस पे हमको नेक्स्ट जीवन का हार्डवेयर मिलेगा. इज दिस क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था. तो इसलिए मन के अंदर हमारा क्या मन का जो सॉफ्टवेयर है, हम इस जीवन में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है. राइट. तो और हमने देखा कि मन को अगर आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे. तो प्रश्न उठता है कि भगवान का धाम है क्या? यही हमारा धाम है, यही हमारा घर है. हम तो बोलते हैं कि हमारा घर है, मैं घर में जा रहा हूं, मैं घर में हूं. हाँ, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज. तो पहले हम आज देखेंगे कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ होम. ओके, घर का डेफिनेशन कौन बता सकता है? Yes, now all of you can say what is the definition of home? How do you define a home? Yes, anyone? Hare Krishna. Anyone would like to define home? Prabhuji, Hare Krishna. Home is a place where we can go anytime and we are always welcome. Okay, home is a place you can go anytime, you have freedom, you are always welcome. Okay, anyone else? Home is a place where we get the protection. Protection, shelter. There is always protection. There is you do not have fear कि क्या हो जाएगा, कोई मार देगा. Nowadays there is fear from husband and wife also and children also, because Kali Yuga is progressing, but generally this is the definition. Yes, और कोई? Hare Krishna Prabhuji. Peace. Peace, satisfaction, love. Very good. What else? Why there is peace in home? Why in office you don't get peace? It depends actually, Prabhuji. Sometimes office is also a place of peace. It depends on the environment. Okay. Okay, the environment. So what is that in the environment that doesn't create peace? Anyone else? Anyone would like to say what makes the home feel peaceful? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad. Hare Krishna, please tell. So home is a place जहाँ पे people don't judge me. Means मैं जैसा हूँ, I am accepted. So one Hari Bol for Mataji. Big Hari Bol by everyone. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. So home is, all of you have told also right answers, but Mataji's answer is the best and the first answer. So the definition of home, that's what I have put. The first thing is that where we can live naturally. Correct? Yes? We do not have to show anything that which we are not. We do not have to pose what we are not, right? So the first definition of home is that where we can live naturally. And the second one is there is no pressure of performance, appraisals based on performance. Why people are loving me in company?
if I perform. But in home, whether you perform or don't perform, people will still love you. Mother will love you. Yes, mother will be little happy if you imagine there is a child and the mother knows that my son is not that intelligent, right? And your son works hard and gets 70%. But if when he goes, when that boy goes to class or anything, the topper will be always appreciated. Arey, kaise dekho, top kar diya, top kar diya, top kar diya. But he comes home, mother will appreciate the son for 70%. Why? Because mother knows that my son is worth 40%, 50%. He has got intelligence, but he has worked so hard and got 70%. So he is worth appreciating. Correct? Yes. How many of you agree with this? That in home, your endeavors are always given important, not your performance. What final performance? How many of you agree with this? Yes, Prabhuji. So this is the second thing. That's why one becomes very peaceful. Because one knows in company, in office, in other places, his performance will be, his appreciation and his acceptance, his appreciation is all based on the final end result performance. That's office. But home, you endeavored, we are happy. If you see the parents, if you see, you have a natural acceptance in home. So this is the second one, and the third one is no worries of. But in Yes. home also there are some fights and something between husband, wife, and Yeah. So we are talking about ideal home. ideal home. Yeah, ideal home. We are talking about a definition. See, definition means always ideal. Okay. Now, if there is a non-ideal behavior, that means we are going away from the definition. But this is what everyone expects when he talks about home. इसलिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि स्वामी जी घर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, चिड़िया खाना घर बन गया. Correct? That means what people expect from home? शांति. Correct? And शांति नहीं है मतलब it is not ideal home. There is some problem which needs to be mended out. It needs to be taken care, because of which the home has lost its peace and sanctity. But generally the definition of home जो होता है वो क्या है? There is no pressure, everyone is peaceful and no worries about maintenance, right? Like the children, are the children worrying about the maintenance? No, मम्मी पापा हैं बस. So बेटा बेटियों के लिए home मतलब क्या है? मम्मी पापा हैं, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, and no worries about maintenance. And the fourth one we see is that satisfaction. One loves to stay there because one feels loved there. There is peace, there is satisfaction, as all of you said, right? So these are some of the 4 points. There can be many more points about definition of home, but these are basic 4 points where one feels homely, right? One feels homely, right? So and we see that in this world, ये जगत में हम जो हैं, क्या ये जगत में जो हम रह रहे हैं आत्मा के लिए, हम अभी आत्मा के स्तर पे बात कर रहे हैं कि जीव आत्मा के लिए क्या ये जगत होम है? ये डेफिनेशन के अनुसार पहला, जीव आत्मा होने के कारण जीव आत्मा ना मरता है ना मरना चाहता है. जीव आत्मा ना बीमार पड़ना चाहता है ना बीमार कभी पड़ता है. जीव आत्मा ना कभी वृद्ध होता है ना कभी वृद्ध पड़ना चाहता है. इस यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है जो बीमार पड़ना चाहता है? नो वन. कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है. कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता है. कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं. हमारे जो इच्छाएं कहां से आता है? जीवात्मा. जीवात्मा इच्छा करता है, शरीर इच्छा नहीं करता है, मन इच्छा नहीं करता है, बुद्धि इच्छा नहीं करता है. हम बोलते हैं ऐसा कि मेरे मन में ऐसे इच्छा हो रहा है.
अरे मन कैसे इच्छा करेगा? मन तो एक सॉफ्टवेयर जैसा है, एक तो मैटर है। इच्छा कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। तो जीवात्मा इच्छा करता है, और जीवात्मा कभी मरना नहीं चाहता है ना कभी मरता है, कभी वृद्ध नहीं होना चाहता है ना कभी वृद्ध होता है, कभी बीमार नहीं पड़ना चाहता है ना कभी बीमार पड़ता है। बट समस्या ये है, इस जगत में हम मरते हैं, इस जगत में हम वृद्ध होते हैं, और इस जगत में हम बीमार भी पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। करेक्ट? तो इसीलिए पहला पॉइंट है कि ये जगत हमारा होम नहीं है, क्योंकि ये जगत में हम नेचुरली जी नहीं सकते हैं। जीवात्मा, नेचुरल स्टेट क्या है जीवात्मा का? वो मरना नहीं चाहता है, वो बीमार नहीं पड़ना चाहता है, वो वार्धक्य नहीं रहना चाहता है, पैदा भी नहीं होता है। बट इस जगत में जब जीवात्मा आता है, उसको मरना पड़ता है। उसका, हालांकि जीवात्मा नहीं मरता है पर शरीर तो मरता है। जिस शरीर में जीवात्मा है, और जीवात्मा को कष्ट मिलता है, फिर शरीर बदलना पड़ता है। तो इसीलिए ये जीवात्मा के लिए ये जगत होम नहीं है। नेक्स्ट, इतना परफॉर्मेंस प्रेशर है जीवात्मा के लिए इस जगत में। हर चीज इस जगत में लेन देन से डिसाइड होता है। हर चीज, एवरी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, कितना मेरे को मिलेगा और क्या मैं तुमको दूंगा। Every relationship, if you analyze in this world, is based on give and take, right? How much we can give, what we can get from him, and what we can give. Give and get, give and get, give and take. This is so that is a lot of performance pressure in this world. Now third, everyone has to worry about maintenance. क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिंदा रहे। एंड कितना सारा दुख है इस जीवन दुनिया में। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी इस दुनिया में दुखी है। हमने देखा है कि नहीं? आई हैव मेट पीपल हु आर मिलियनर्स, लखपति, करोड़पति, दे आर ऑल्सो मिजरेबल, दे ऑल्सो क्राई। एंड आई हैव मेट पीपल हु आर बेगर्स, बैंकक्रप्ट beggars, they also cry. And I have met people who are middle class people, those who are not bankrupt, those who are not billionaires, but they are also miserable. So much of misery. The Jivatma is always happy, but in this world we are always tormented with so much of anxiety and pain. That is why this world is not the home of the Jivatma. क्या घर है वो बाद में हम देखेंगे, पर इस जो जगह है ये जीवात्मा के लिए घर के डेफिनेशन से फिट नहीं होता है। ये पहला चीज हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो जगत है जीवात्मा का अनुसार, जीवात्मा के डेफिनेशन ऑफ होम में फिट नहीं होता है। इसलिए जीवात्मा के लिए ये जगत घर नहीं है। और यही चीज भगवान पहला चीज 8वें अध्याय में आगे जाके बताते हैं। पहला चीज भगवान बताते हैं कि किस तरह ये जगत जो है जीवात्मा के लिए घर नहीं है। तो पहला श्लोक अभी हम देखेंगे। तो भगवान ये जगत के बारे में अभी बताएंगे। Yes, so we will recite this shloka. This is 8th chapter, 15th shloka. Mam upetya punarjanma. Yes, Vijay. Oh. Mam upetya punarjanma. Dukkhalayam asaswatam. Dukkhalayam ashashvatam. Napnuvanti mahatmanah. नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। संसिद्धिं परमां गतः। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म। मेरे पास आने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, माम उपेत्य मतलब मेरे पास जो आ जाता है, मेरे पास जो आ जाता है, मेरे को स्मरण करते हुए
जो मृत्यु वर्ण करता है वो मेरे पास आ जाता है। वही तो भगवान ने बोला ना, यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजति अन्ते कलरम। तो ये जो जो जिस तरह का स्मरण करता है उसको मिलता है। अंत काले च माम एवा, मेरा जो अंत काल में स्मरण करता है तो मेरे धाम में आ जाता है। फायदा क्या होगा मेरे धाम में आते हैं तो? माम उपेत्य पुनर्जन्म, अगर कोई मेरे धाम में आ जाता है, भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, इस दुनिया जो दुखालय है, अशाश्वत है, नाप्नुवंती महात्माना, वो महात्मा नाप्नुवंती, फिर से उसको ये दुखालय अशाश्वत जगत में आना नहीं पड़ेगा। संसिद्धिम परमाम गताम, इसीलिए कोई अगर इस जगत को छोड़ के भगवान मेरे धाम में आ जाता है, उसको परमम गता, उसको बोला जाता है कि उसको परम गति प्राप्त हो गया, सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त हो गया। तो पहला चीज जो भगवान बोल रहे हैं ये जगत की नेचर, प्रकृति के ऊपर, वो है इट इज मिजरेबल, दुखालयम। देखिए इधर लिखा हुआ है, पहला है क्या? दुखालयम, मिजरेबल। नेक्स्ट है अशाश्वतम, शाश्वत मतलब सब समय ऐसे ही रहेगा। अशाश्वतम मतलब ऑलवेज टेम्पररी, इट इज कॉन्स्टेंटली टेम्पररी, परमानेंटली टेम्पररी। ये वर्ल्ड क्या है, ये दुनिया क्या है? परमानेंटली टेम्पररी। हर समय कुछ जो भी चीज है वो टेम्पररी, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद हमसे चला जाएगा। हम भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर और कहीं हमको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो इस दुनिया में दुख है, दुखालय। आलय मतलब क्या है? देखिए क्या शब्द भगवान यूज कर रहे हैं, आलय। ये आलय शब्द कहाँ यूज होता है? ये आलय, ये जो आलय, आलय शब्द कहाँ यूज होता है? पुस्तकालय, विद्यालय। देखा है ना, विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या है? विद्यालय का मतलब क्या है? जहां पे विद्या मिलता है, करेक्ट। पुस्तकालय या ग्रंथालय, तो ग्रंथ मिलता है। औषधालय, आलय मतलब जगह, औषधालय मतलब जहां पे औषध मिलता है। ग्रंथालय जहां पे ग्रंथ किताबें मिलती है। दुखालय भगवान बोले हैं जहां पे दुख मिलता है। इस दुनिया में जब जीवात्मा आता है केवल दुख खरीदता है। कोई कोई पैसा देके के दुख खरीदता है जिसके पास पैसा है, और कोई कोई गरीब है तो बिना पैसा का दुख खरीदता है इस दुनिया में। जैसे हम सब सन्यासी लोग हैं, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, हमको भी दुख आता है, हमको भी बीमारी लगता है, हमको भी समस्या होता है, तो हम बिना पैसा का दुख खरीद रहे हैं। और जिसके पास पैसा है, बड़ा बड़ा आदमी है, वो पैसा के साथ दुख खरीद रहा है। पर इस दुनिया में जो भी आता है वो दुखालय में आ रहा है, और दुख मिलेगा ही मिलेगा, कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं, क्या स्वामी जी, क्या प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि दुखालय है, भगवान गलत बोल रहे हैं। समस्या तो है स्वामी जी, है समस्या, बट आप गलत बोल रहे हैं स्वामी जी। इस संसार में दुख तो है, बट ये संसार केवल दुखालय नहीं है, थोड़ा आनंद तो है स्वामी जी, थोड़ा आनंद तो है। तो भगवान बोले हाँ, और जो आनंद है वो अशाश्वतम है। कुछ दिनों के लिए रहेगा, तुरंत चला जाएगा। जैसे हमने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल खरीदा, तो वो मोबाइल पहले तो आपके पास सब समय नहीं रह सकता है। तो मोबाइल खरीदेंगे, कुछ समय के बाद वो मोबाइल फिर पुराना हो जाएगा, और वो फिर मोबाइल पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, फिर नया मोबाइल आपको खरीदने का मन करेगा। वो नया मोबाइल खरीदेंगे, वो थोड़ा आपको कुछ दिनों के लिए आनंद देगा, फिर वो भी आनंद बंद कर देगा। तो इस दुनिया में सब कुछ जो भी थोड़ा सा आनंद है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। राइट? जब हम जवान होते हैं तो शरीर से आनंद मिलता है,
हजम कर पाते हैं खाना खा के, और इंद्रिय तृप्ति कर पाते हैं सब कुछ, बट कितना दिन जवानी रहता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। जब हम बुद्धि हमारा चलता है, कुछ दिनों के लिए आनंद आता है, फिर उसके बाद बुद्धि भी धीरे धीरे कम होते जा लगता है, स्मरण शक्ति कम हो जाने लग जाता है। शरीर का जो गठन है सुंदर है, जो थोड़ा सुंदर दिखता है, वो भी वृद्ध होके, तो जो भी इस दुनिया का आनंद है वो क्षण भंगुरे, थोड़ा क्षण के लिए रहता है भंगुरे, भंग हो जाता है। एक क्षण के लिए आपको आनंद मिलेगा, फिर भंगुरे, वो भंग होके फिर आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले हैं पहले तो ये दुनिया में 99.99% दुख है, और जो 0.1% आनंद है, वो 0.1% आनंद के लिए आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा, और कष्ट कर करके फाइनली आपको जब आनंद मिलेगा, वो आनंद कुछ समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। हरे कृष्ण। तो ये पहला नेचर है, प्रकृति है ये भौतिक जगत का, कि जगत में कोई अगर बुद्धिमान है, कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, तो मैं जो बोल रहा हूं और भगवान जो भगवत गीता में बोल रहे हैं, उसके ऊपर वो ध्यान पूर्वक बुद्धि लगाएगा अपना, कि हाँ सही तो भगवान बोल रहे हैं, ये दुनिया में कितना दुख है, थोड़ा सा आनंद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना कष्ट करना पड़ता है, और उसके बाद वो आनंद कुछ समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। तो ये दुनिया का नियम है जो भगवान इधर बता रहे हैं, कि ये दुनिया ऐसे बना हुआ है। तो पहला प्रकृति, ये दुनिया का नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज अ मिजरेबल प्लेस, एंड इट इज, एंड व्हाटएवर, ये दुख से भरा हुआ है, एंड थोड़ा जो आनंद है वो भी अस्थाई है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। नेक्स्ट भगवान क्या प्रकृति बता रहे हैं। कोई बोलेगा शायद ठीक है, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी में दुख है। जैसे कोई लोग बोलते हैं हाँ 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 स्वामी जी बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैंने ना भारत में पैदा हुआ इसीलिए सारा दुख है। तो जो भारतीय होता है वो सोचता है क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ, वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसलिए दुख है। कोई अगर अंडर डेवलप कंट्री में पैदा होता है, वो सोचता है कि मैं अंडर डेवलप कंट्री में पैदा हुआ तो डेवलपिंग कंट्री में चला जाऊंगा तो सारा दुख चला जाएगा। कोई डेवलपिंग कंट्री में है जैसे भारत है, वो सोचता है अमेरिका, यूरोप में, कनाडा में चला जाऊंगा तो मैं डेवलप कंट्री में चला जाऊंगा तो सारा दुख चला जाएगा। और जो अमेरिका में है वो भी दुख में है, इसीलिए चंद्र में जाना का कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? और वो भी अमेरिका में चंद्र में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए अमेरिकन यूरोपियन सब फ्रस्ट्रेट होके समझ में आ गया कि ये सब आनंद नहीं दे पाएगा, इसलिए मायापुर में बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। सोचिए क्यों हम मायापुर में, हमारे इस्कॉन के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में 56 से ज्यादा, 50 मोर देन 56 कंट्रीज से, नेशनलिटीज से लोग हैं, इधर भक्ति कर रहे हैं, और बड़े बड़े घराने के हैं, ऐसा नहीं कि गरीब लोग इधर आके बैठे हुए हैं। क्यों? उनके पास तो इतना कुछ है, वो तो डेवलप कंट्री से हैं, तो फिर से अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री गांव में क्यों बैठे हुए? मायापुर तो एक गांव है, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको उधर आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि आनंद है ही नहीं इस दुनिया में। ये तो भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं खोल के। और जो बुद्धिमान है विश्वास करेगा, देखेगा अपना और विश्वास करेगा। जो मूर्ख है ऐसे ही मूर्ख की तरह घूमता रहेगा आनंद की तलाश में, जो है ही नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में केवल दुख ही दुख है। तो दूसरा चीज भगवान इधर बता रहे हैं कि कोई अगर ऐसे भी सोच सकता है, हाँ ठीक है भगवान बोले हैं दुनिया में दुख है, पर अगर स्वर्गलोक में चले जाएंगे, इंद्र देखिए, चंद्र देखिए, स्वर्गलोक में चले जाएंगे, ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। जैसे भारत के लिए अमेरिका स्वर्गलोक है, अमेरिका के लिए इंद्रलोक स्वर्गलोक है, इंद्र के लिए ब्रह्मालोक स्वर्गलोक है। सबके लिए अपना अपना डेफिनेशन है स्वर्गलोक का, है कि नहीं? जो भारत के इर्द गिर्द दूसरे देशों में है और उन देशों में खराब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो भारत को स्वर्गलोक समझते हैं, किसी तरह भारत में घुसना की कोशिश करते हैं। भारत वाले
अमेरिका जाने में घुसने का कोशिश करते हैं क्योंकि उनके लिए स्वर्गलोक है। तो कोई सोचेगा कि हाँ इधर दुख है, पर ऐसा दुनिया इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, स्वर्गलोक है, इंद्र है, चंद्र है, सब लोग हैं, बहुत आनंद है। भगवान उसको भी क्लैरिफाई करते हैं, उधर भी आनंद नहीं बेटा, हरे कृष्णा। तो उसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे। आ ब्रह्मा भुवनालोका आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना पुनरावर्तिन अर्जुन अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेद्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा लोक से लेके नीचे लोक तक पुनरावर्तिनो अर्जुनो, सब जगह दुखी दुख है। बार बार आपको घूमना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, और आप चक्कर लगाते रहिए। ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक चक्कर लगाते रहिए, कहीं पे भी आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा जो पहला वाला जो श्लोक मिला, 15 नंबर श्लोक बताया कि दुख, दुखालय और अशाश्वत। आप ये डेफिनेशन से ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सब ये डेफिनेशन से चलते हैं, सबका यही प्रकृति है। आ ब्रह्मा भुवना लोका, कोई बोलेगा मैं भारत में बैठा हुआ हूं, अमेरिका चला जाऊंगा तो दुखालय नहीं रहेगा अमेरिका, पर अमेरिका भी दुखालय है। आप अमेरिका क्या, इंद्रलोक क्या, ब्रह्मलोक, कहीं पे भी चले जाए, ये जगत में दुख ही दुख है। और क्यों दुख है? अमेरिका जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्वर्गलोक जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जगह है, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ। और यही दुख का मेन कारण है। दुख का मेन कारण है क्योंकि डर है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा, एक दिन मैं मर जाऊंगा और एक दिन सब कुछ चला जाएगा मेरे हाथों से, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं इनवैलिड हो जाऊंगा। ये सब के अंदर ये डर रहता है। कोई कितना भी करेजियस हो, कोई कितना भी सीना फाड़ के खड़े हो जाए, सब मृत्यु से डरते हैं। छोटा चींटी से भी लेके, छोटा चींटी को ऐसे पकड़ेंगे दौड़ के भागने लग जाएगा, और आपको भी पकड़ेंगे मारने के लिए। तो जीवात्मा, कोई मरना नहीं चाहता है क्योंकि जीवात्मा अमर है, और जीवात्मा ये शरीर में कैद है जो हर समय ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भटक रहा है, और इसीलिए दुख पा रहा है जीवात्मा। तो ये दूसरा चीज भगवान इस जगत की कारण नियम के बारे में बता रहे हैं। और तीसरा चीज भगवान क्या बता रहे हैं कि बार बार ये चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली इट इज चेंजिंग। यू सी, चेंज क्रिएट्स ए लॉट ऑफ एंजाइटी इन लाइफ। जैसे घर बदलना, चेंज क्रिएट्स लॉट ऑफ एंजाइटी। उस तरह जॉब बदलना क्रिएट्स लॉट ऑफ एंजाइटी, कैरियर बदलना क्रिएट्स लॉट ऑफ एंजाइटी। तो चेंज ऑलवेज क्रिएट्स एंजाइटी, एंड ये जगत में सार समय चेंज होता रहता है। एंड भगवान इसीलिए बोल रहे हैं ये जगत इसीलिए बहुत कष्ट देता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा, अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे, प्रभवन्ति अरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सम्यके। तत्रैवाव्यक्त सम्यके। यस, अव्यक्ता व्यक्तया सर्व प्रभवन्ति अहरागमे। अगेन एंड अगेन अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त हो। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट, व्यक्त मतलब मैनिफेस्ट। दिखाई देता है फिर चला जाता है, दिखाई देता है फिर चला जाता है। तो इस तरह ये जगत बार बार चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज इज द constant factor in this world which creates constant anxiety in this world. There is always changing, and change creates more and more anxiety in this world. तो फिर भगवान बोले
कि ये जो प्रकृति है ये फिर और एक श्लोक भी बोल रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा से लेके हर कोई बार बार बनते हैं, बार बार सृजन होता है, सृष्टि होता है, संहार होता है, सृष्टि होता है, संहार होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा मतलब बार बार, भूत्वा जैसे बार बार बोलते हैं ना हिंदी में, तो संस्कृत में भूत्वा भूत्वा बार बार प्रलीयते, बार बार बनता है, भूत्वा ग्राम बनता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो बार बार बनता है, बार बार सृष्टि होता है, बार बार संहार होता है, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ एंजाइटी। सो देन क्या हम जीवात्मा का घर कहाँ है? तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में आध्यात्मिक जगत घर के बारे में बताएंगे। देखिए ये 20 नंबर श्लोक है। परस्तस्मास्तु भावन्यो, परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यस सर्वेषु भूतेषु यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्तु न विनश्यति, नश्यस्तु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावन्यो, पर मतलब इसके ऊपर, ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, इसके ऊपर भाव अन्य, अन्य भाव का, अन्य भाव मतलब समझते हैं, अन्य मतलब अपोजिट। तो भगवान एक श्लोक में उनके जगत के बारे में बता देते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बता देते हैं। अन्य मतलब अपोजिट, मतलब अगर भौतिक जगत मिजरेबल प्लेस, टेम्पररी प्लेस है, दुखालय, अशाश्वतम है, तो आध्यात्मिक जगत अन्य अपोजिट है। मतलब भौतिक जगत अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बोल रहे हैं इट इज कंप्लीटली अपोजिट। भाव अन्य, भाव मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रकृति, अन्य भाव मतलब सेपरेट, अपोजिट भाव, एंटोनिम, अपोजिट क्या है? तो अगर हम देखेंगे भगवान ने बोला कि ये जगत क्या है? दुखालय और अशाश्वतम। और आध्यात्मिक जगत क्या होगा? अन्य भाव, मतलब ब्लिसफुल, आनंदमय जगह और शाश्वत जगह। वहां पे सारे रिश्ते शाश्वत है, हमारे माताजी पिताजी सब कोई उधर शाश्वत है। हमको बार बार माता पिता, बेटा बेटी और भाई बहन बदलने की जरूरत नहीं है। We'll always have a constant father, constant mother, constant sister, constant, and that change creates so much of anxiety. This life I have one father mother, again next life another father mother, again next life another father mother. I don't want to give up this father mother, but I have to give up this father mother and again take another father mother. But आध्यात्मिक जगत में एक ही मम्मी पापा, एक ही भाई बहन, एक ही परिवार, अनशाश्वत रूप से वही परिवार के साथ आप रहिए, नो चेंज, और आनंदमय जगह है ये। और इस जगत में भगवान बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और आध्यात्मिक जगत में कुछ भी एंजाइटी नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। भाव अन्य, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ये जगत है, और आध्यात्मिक जगत इटर्नल है, शाश्वत रूप से रहता है। तो इस तरह भगवान अपना धाम, भगवान आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत के बारे में तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस भगवान 8वें अध्याय में कर रहे हैं, राइट? Krishna is giving a comparative analysis between spiritual world and material world, that how spiritual world is filled with happiness, how spiritual world is eternal, there is no anxiety, the spirit soul lives with lot of freedom. That's what is spiritual. तो ये श्लोक हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। न तद भासयते सूर्यो, जहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांको, शशांक मून की आवश्यकता, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, न पावक फायर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है। एवरीवन इज सेल्फ इफल्जेंट, मतलब एवरीवन इज not having, there is nothing to maintain, so it's self maintained world. तो होम हो गया ना, सेल्फ मेंटेन्ड, आपको दौड़ भाग करना नहीं पड़ेगा, जॉब नौकरी नहीं करना पड़ेगा, असाइनमेंट डेडलाइन नहीं करना पड़ेगा, इट इज सेल्फ मेंटेन्ड वर्ल्ड।
and always you are in happiness and you are always enjoying. अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सोचे तो हमको समझना चाहिए कि हम सब 5 दिन खटते हैं और उसके बाद 2 दिन हम रिलैक्स करते हैं. ओहो, फिर से नौकरी करने जाना पड़ेगा. और वो जो 2 दिन का रिलैक्सेशन का जो हमको रिलीफ मिलता है, उसको अगर पूरा अपना जीवन बना देंगे, और वो जीवन है आध्यात्मिक जगत. It is completely place where one can fully enjoy without any worry about maintenance and anxiety. That's what is Adhyatmik Jagat, spiritual world, right? And always there is filled of happiness. It's self-maintained. One doesn't have to worry about one's maintenance, and there is no anxiety, no performance pressure. तो वो बता रहे हैं, ये श्लोक हमने लास्ट क्लास देखा था, राइट? तो ये ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बताया है आध्यात्मिक जगत के बारे में. श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो. श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो. द्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयमृतम्. द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयमृतम्. कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी. कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी. चिदानन्दं ज्योति परममपि तद् आस्वाद्यमपि च. चिदानन्दं ज्योति परममपि तदास्वाद्यमपि च. श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो. ये ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने इसको लिखा है आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में. तो क्या लिख रहे हैं, देखिए. श्रिया कांता कांता, सब जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, सबकी पत्नियां लक्ष्मी की तरह सुंदर होती है, राइट? और परम पुरुष, परम पुरुष को आराधना करते हैं, और सब कोई पति हो पत्नी हो, हर कोई परम पुरुष का आराधना करते हैं. अत्यंत उनका सुंदर शरीर है. फर्स्ट ऑफ ऑल it tells about beauty of the bodies of the residents of spiritual world. नेक्स्ट क्या है, कल्पतरवो. कल्पतरु, जितने सारे पेड़ हैं कल्पतरु है. मतलब आप पेड़ के पीछे नीचे जाके खड़े होइए, कल्पना कीजिए, जो भी कल्पना करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. जो भी चाहिए कल्पना कीजिए और वो आ जाएगा. कल्पतरवो. द्रुमा भूमि, और जो भूमि होता है वो ना मिट्टी से बना हुआ है, चिंतामणि, मणि का भूमि है, मणि से बना हुआ है, स्टडेड गोल्ड एंड स्टडेड विथ डायमंड्स एंड मणिज. ये भूमि है, ये अर्थ है आध्यात्मिक जगत का. तोयम अमृतम. ना बिस्लरी खरीदने की जरूरत है, ना एरो वाटर लगाने की जरूरत है. पानी अमृत की तरह है. तोयम मतलब पानी, अमृत की तरह है. पानी को पीने से ही आपको सब कुछ, और कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली पानी इतना अमृतमय है. और क्या है, कथा गानम. और हर कोई झगड़ा नहीं होता है, हर कोई गाना गाते हुए कथा करता है, बातें करता है, और हर वक्त आनंद में. जैसे कौन गाना गाता है, जो मजे में है ना. इस दुनिया में तो केवल गाना गाने के लिए लोग इतने दुख में हैं, गाना गाने के लिए दारू पीना पड़ता है, भूलना पड़ता है दुख को, तब जाके आदमी गाना गा पाता है कि नहीं? नहीं तो कौन गाना गा पाता है? भक्त लोग गाना गाते हैं मंदिर में, नहीं तो कौन गाना गाता है? इतना दुख है, इतना दुख है, उसको गाना गाने के लिए पहले थोड़ा दारू पीना पड़ता है, फिर जाके गाना गाता है. देखते हैं ना हम, जब शादी ब्याह होता है, पीछे पीछे पी लेते हैं सब कोई और गाना गाते हैं. क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि इतना दुख है, पहले तो दुख को भूलना पड़ेगा, तब जाके गाना गा पाएगा. पर आध्यात्मिक जगत में हर कथा, हर चीज गाना के जैसा है. नाट्यम गमनम, चलना ही नृत्य है. आपको सेपरेटली डांस करने की जरूरत नहीं है. शादी ब्याह में बाराती में जाके डांस करनी, हर समय नृत्य करते हैं व्यक्ति लोग.
हर समय नृत्य करते करते ही चलते हैं। बमसी प्रिय सखी, और हर समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है, आनंद का महोत्सव का हर समय सिचुएशन होता है, राइट। चिदानंद ज्योति, और हर समय लाइट रहता है और कभी भी पावर आउटेज नहीं होता है, कभी भी ऐसे नहीं कि कोहरा हो गया तो, और टेम्परेचर हर समय कूल रहता है, एयर कंडीशन रहता है। चिदानंद ज्योति, चिदानंद ज्योति मतलब टेम्परेचर, और चिदानंद मतलब हर समय चित आनंद, हर समय आनंदमय टेम्परेचर वातावरण रहता है। तद आस्वाद्यम अपिच, लोगों को आस्वादन करवाने के लिए हर समय एनवायरमेंट पूरा आनंदमय रहता है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में। सोचिए हम कहां फंसे हुए हैं। तो प्रश्न उठेगा ये, जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वाह भगवान ने तो अपना धाम को अच्छे से बना दिया और हमको इधर सड़ने के लिए भेज दिया। लोग बोलते हैं ना, भगवान ने मेरे को भेजा इधर, तो भगवान ने मेरे को इधर सड़ने के लिए भेज दिया, भगवान ने मेरे को सूखा ये जगत दे दिया और अब तो मजा मार रहे हैं उधर, मजा मार रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या डिस्क्रिप्शन मारा। और हमको उधर, हम जब उधर जाएंगे उनका चापुलिसी करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तब भगवान हमको उस तरह का जगत में रखेंगे। हमने उनका सेवा नहीं किया, इसीलिए भगवान ने हमको लात मार के इधर भगा दिया। बहुत सारे धर्म में ऐसे ही बोला जाता है कि भगवान, क्योंकि हमने भगवान का चापुलिसी नहीं किया, भगवान का तेल मालिश नहीं किया, और इसीलिए हम इधर आ गए, भगवान ने भेज दिया। और ये दुनिया ऐसे बनाया है जो भगवान का सेवा नहीं करते हैं, चापुलिसी नहीं करते हैं, इधर आ जाते हैं। क्या ये है, क्या ये सच्चाई है कि भगवान उनका धाम को इतना प्रेममय बना दिए और इस जगत को इतना निष्ठुर बना दिए क्योंकि इस जगत, क्योंकि हम भगवान का बात नहीं मान रहे थे? क्या ऐसा है? और सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए आप जरूर अगले क्लास में आइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। और दूसरा प्रश्न जो हम उत्तर देंगे नेक्स्ट क्लास, कि ऐसा क्या हो सकता है क्या इस जगत को ही भगवान की जगत की जैसा बनाया जाए? ये दूसरा प्रश्न हम उत्तर देंगे नेक्स्ट क्लास। पहला उत्तर देंगे, पहला प्रश्न डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, उनका जगत इतना आनंदमय और इस जगत में इतना दुख, इतना काम करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न हम उत्तर देंगे कि भगवान क्या ऐसे हो सकता है कि ये जगत ही भगवान की जगत की जैसा बन जाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पर ये दो प्रश्न मत पूछिए क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। इससे अलावा प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, मुझको तो पता नहीं था, मे बी आई वॉज इन दैट आध्यात्मिक एरिया, मतलब जहाँ पे भगवान का धाम है, मुझे पता नहीं था। मैं वहां से निकल के आ गया और इस दुनिया में आके फंस गया और युगों से मैं इसी दुनिया में चल रहा हूँ। बट उसी टाइम पे कुछ कुछ लोग तो लौट भी रहे होंगे, मतलब आध्यात्मिक वर्ल्ड में वापस। तो उन्होंने मेरे को रोका क्यों नहीं? या फिर वहां पे जरूर, देयर इज फुल काउंसलिंग, एवरीथिंग गोइंग ऑन, क्यों रोका नहीं? अरे बहुत, इस दुनिया में आना, भगवान के धाम पे छोड़ के इस दुनिया पे आना इतना आसान नहीं है। बहुत काउंसलिंग होता है, बहुत कुछ होता है। जब एक बृहत भागवतामृत है, वहां पे मेंशन्ड है कि कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है लोगों से, जो जीवात्मा इस दुनिया पे आना चाहता है, फिर भी जीवात्मा एडमेंट होता है। एडमेंट बाइबल में कहानी है, फॉरगेट अबाउट आवर शास्त्रास, इन बाइबल ओनली देयर इज स्टोरी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोरी ऑफ ए सन, जो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ऑफ ए सन हु लीव्स the spiritual world, comes to the material world, who leaves his father,
एंड बाकी जो बेटे लोग हैं वो बोलते हैं अरे तुम इधर क्यों छोड़ रहा है, हमारा घर क्यों छोड़ रहा है, एक साथ रहो ना, क्या तुमको समस्या है? ना ना मेरे को अलग घर बनाना, अलग घर हम बनाना है। तो बाइबल में भी ये कहानी आता है, तो हर धर्म शास्त्र में कहानी आता है कि बहुत काउंसलिंग होता है, पर हम भगवान की बात नहीं मान के, जैसे एक adamant child doesn't want to follow the father's advice, wants to simply misuse his freedom and wants to spoil his career. Exactly in that same way we have become we were like adamant child, like that. So that's what is mentioned in scriptures. Okay. Yes, Suruji. प्रभु जी प्रणाम. Yes, pranam. Hare Krishna. Yeah, why do anybody wish to come here? Basically, from where That do also, anybody so get that the idea? yes, that also we will discuss next week. That also we'll discuss. That question is also there. So these three questions, I forgot to mention that. So yes, we will discuss that. How the Jivatma gets this desire. अगर इतना आनंद में जगह है, कुछ छोड़ के जाएगा? मैं तो नहीं छोड़ के जाऊं, पर फिर भी कैसे हम सब आ गए, तो क्यों आ गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे. Apart from that, basically that how do it come into basically in their consciousness? Yeah. How it comes in that consciousness. I want. Yes, that we will discuss how it comes. We will discuss the mechanism of fall down, how a Jivatma falls from the spiritual world to material world. That also we will discuss. Yes, thank you very much. So next class, more things will get clear. This is a little bit elaborate topic, and this is a topic which will require more discussion, because this is about our home, our original home. So that is why we'll spend a little more time on dwelling on this subject. Okay. Prabhuji, sorry, just Prabhuji, yes. Say there is a Bengali poem. It says that কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষই সুরাসুর. That means where is heaven, where is hell? It is who said it's far away. The Sarg Narak, it is within us. We are devil, we are God. Correct. So the mind actually creates Swarga and Narak for a person. This is spoken in a way that, for example, if I have a mobile, okay, or I have a laptop, it's a gadget. So this gadget, I can use this gadget in such a way that it can create heaven for me. Matlab, I can earn money. I can have from that I can have a very nice life. Or I can use this gadget for doing terrorist activity or some fraud. Then I can get caught and I can create hell. Correct? Yes. Correct. Yes. So the gadget is neither hell or heaven. I use the gadget to create hell and heaven. Okay. So the song is mentioned in this context, but that does not mean that there is no hell and heaven. There is hell and heaven. There is a place where a heavenly place. There is a place called hell, where primarily everything gives you misery. Hell means what? Primarily everything gives you misery. Heaven means primarily everything gives you enjoyment. So that is a place. And then there is beyond hell and heaven. Next class also we will see where is the spiritual world exactly located. And where is hell, where is heaven? We will see the structure of the universe also. That we will see next to next class. So next class we'll answer these questions. Next to next class we will see exactly where all the location of the heavenly planets, how the universe is located, where is Adhyatmik Jagat, where is Vaikuntha, where is Golok Vrindavan, where is Ayodhya Dham, where Lord Ram is staying. So those all things we will discuss next to next class. Okay. So you have to give little patience. This is a big subject matter, and we will go slowly. Okay. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.